Articles a and the. Fill in the blanks of the following sentences with suitable option a and the. Write the answers below given questions by stopping the video. Stop the video for a while, write only the answer 1, 2, 3, whatever may be, and after that again start and go to next page. There you will find the answer. Now check your answers. Write in the comment box the number of your correct answers. He is an SDO. He is a subdivisional officer. An SDO because here S is pronounced as SDO, SDO, and he is a subdivisional. Here S is consonant and there it is vowel. So he is a subdivisional officer. He is a European. European starts with E, but its sound is Y, U. In Hindi you write European, European. The capital of United Kingdom is London. I am an MLA. I get a boy in the market. I met a boy in the market. The boy is from my state. You are the only son of your parents. Remember it. He has a horse. He is an honest person. My father is the principal of my school. Here 8 and 9, 8 और 9 में देखिए दोनों एस से है. He has a horse. और हॉर्स एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ए इसमें आर्टिकल लगा और ही इज एन ऑनेस्ट मैन यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी एन लगा क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है. हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, एच नहीं बोल रहे हैं. और माई फादर इज द प्रिंसिपल के आगे हेड ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूशन के आगे हम द लगाते हैं. द प्रिंसिपल, द कमिश्नर, द मजिस्ट्रेट, द जज, लाइक दैट. इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे. ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स. इनको आर्टिकल कहते हैं. आर्टिकल is a word which is used to modify a noun which is a person, place, object or idea. वो noun जो एक person हो, place हो, object हो या idea हो उसके आगे हम article a and the लगाते हैं. Technically article is a determiner which is an adjective. Article determiner है और determiner adjective है इसलिए article भी adjective है. Usually adjectives modify nouns through descriptions, but articles are used instead to point out or refer to a noun. आर्टिकल और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? दोनों एडजेक्टिव ही है लेकिन डिफरेंस है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ब्यूटिफाई करता है, उसके बारे में बताता है. ब्यूटीफुल पिक्चर, हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, तो मैन को वहां पर मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है द बॉय, वो बॉय. एन एलिफेंट, एक एलिफेंट. एन ऑरेंज, एक ऑरेंज. Articles in English grammar are of two types, indefinite article and definite article. दो तरह के हैं, indefinite अनिश्चित, कोई भी, कुछ भी, और definite खास, particular. So articles are a and the, and they are of two types, indefinite article a and definite article the. Indefinite article do not refer to any particular person, place or thing, and definite refers to some particular person, place or things. A girl is eating an orange. A girl is eating an orange. यहाँ पर कौन सा ऑरेंज? कोई एक ऑरेंज. कौन सी लड़की? ए गर्ल, एनी गर्ल, इसलिए इंडिफिनिट है. लेकिन उसमें दिस इज द बॉय हु वॉन द रेस. यहाँ उस बॉय के बारे में बोला जा रहा है जो कि रेस जीता है, पर्टिकुलर बॉय. इसीलिए डिफिनिट आर्टिकल जो है पर्टिकुलर होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल इंडिफिनिट है, कोई पर्टिकुलर नहीं. Indefinite article an. It does not point out to any particular person, place or thing. किसी भी खास व्यक्ति, स्थान या
किसी वस्तु के बारे में जो नहीं बताया है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है और वो an लगता है। इंडेफिनिट आर्टिकल एक क्या है? A is used before a noun starting with consonant sound other than vowel letters. vowel letters के बिना जो स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो। वॉवेल से भी अगर स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ ए लगेगा। हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। ए बॉय इज स्टैंडिंग देयर। कौन सा बॉय? एनी बॉय, पर्टिकुलर नहीं है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। एनी मैन, नॉट ए पर्टिकुलर मैन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल जो है इट इज यूज बिफोर ए नाउन स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड। वॉवेल और वॉवेल साउंड में अंतर है। वॉवेल सिर्फ 5 होता है, ए आई ओ यू, लेकिन वॉवेल साउंड 20 है संख्या में। 12 मोनोथॉन्ग्स और 8 डिप्थॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स जो एक बार में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये जो एक बार में बोलते हैं। और ईय, उ, नीय, डीय, ये हम लोग फोनेटिक्स, अल्फ़ाबेट्स, फोनेटिक्स और वर्ड वाले लेसन में, ग्रामर में हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है। डिटेल में अगर जाना हो तो वहाँ काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। यू मे विजिट देयर। एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट। कौन सा एलिफेंट? एनी एलिफेंट, नॉट पर्टिकुलर। एन इंटेलिजेंट पर्सन विंस द क्विज। यहाँ पर आई से स्टार्ट है। इन इंटेलिजेंट में ई है और एलिफेंट में भी ई है, इसलिए दोनों में एन लग गया। डेफिनेट आर्टिकल द। It is an article which points out to a particular person, place or thing. The article जो है इसको definite article कहते हैं और ये खास प्रकार का, खास व्यक्ति, खास स्थान और खास वस्तु के बारे में बताता है। द ताजमहल इज इन आगरा। यहाँ पर्टिकुलर ताजमहल कौन है? पर्टिकुलर मोनूमेंट, इसलिए द लग गया। वेयर इज द बुक? वो बुक कहाँ है? वेयर इज द बुक? बुक कहाँ है नहीं कहते हैं, वो बुक से मतलब है। बुक के आगे द लगा है। कौन सा? दैट आई गेव यू यस्टरडे, दैट आई परचेज फॉर यू फ्रॉम मार्केट। यहाँ पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। डिफिनिट आर्टिकल द पॉइंट्स आउट टू ए डिफिनिट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, दिस इज द बुक। कौन सा बुक? आई वॉज आस्किंग फॉर, जिसके बारे में पूछ रहा था, यहाँ डिफिनिट बुक। ही इज द मैन। कौन सा मैन? आई वॉज वेटिंग फॉर, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, डिफिनिट मैन। मोहन इज एट द डोर, पर्टिकुलर पॉइंट पर है, प्लेस पर है। कहाँ पे? डोर। मोहन खड़ा है, कहाँ खड़ा है? द डोर पे, इसलिए द। और एक टिपिकल यूज है जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं, आप सबको भी हो सकता है नया यूज समझ में आए। ए मिस्टर मोहन इज एट द डोर। यहाँ ए लग रहा है मिस्टर मोहन, प्रॉपर नाउन है, नेम है, पर्सनल, लेकिन इसके आगे ये नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है। ये करेक्ट यूज है, सीखना चाहिए हमें। यहाँ पे ए मोहन का मतलब सब मोहन, कोई मोहन नाम का आदमी गेट पे खड़ा है। जब हम ऐसे कहते हैं देन इट इज यूज। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ ए एंड द। इनका यूज हम देखेंगे। यूज ऑफ ए बॉय, ए टेबल, ए lion, a star, a book, etc. Before word beginning with a consonant sound. टेबल में ट, लायन में ल, स्टार में स, बुक में ब, हाउस में एच, ह, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए लगा। अब यहाँ एक स्टार करके दिया हुआ है। ईयर हैज़ 12 मंथ्स। यहाँ पर हम बोलते हैं ईयर, ई आर, गलत बोलते हैं। अपने कान को बंद करके फिर से बोलना सीखिए। स्पीक ट्वाइस थ्राइस। इट इज ईयर, य से होता है ईयर, नॉट ईयर। हम लोग अगर कहते हैं ईयर हैज़ 12 मंथ्स, गलत बोलते हैं ईयर, वाई ईयर, ईयर, य। A one-eyed giant, a one-rupee note, a one-man army, a one-man show. यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ओ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, वन, ओ एन ई, वन। ओ क्या है? वॉवेल है, तो यहाँ एन लगना चाहिए, लेकिन ए लगा है। क्यों? क्योंकि उसका हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, बोल के देखेंगे, साउंड देखेंगे, तो यहाँ व का साउंड आ रहा है। व का साउंड कहाँ से निकलता है? डब्ल्यू से। तो बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ ओ, when it sounds as W, वो। हिंदी के वह, वही, वहाँ,
इसको इंडिकेट करने वाला जो साउंड है वो है, और इसीलिए यहाँ ओ वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है। वॉवेल है लेकिन वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा। A used, a useful thing, a university student, a universal fact, a unique person, a European. Before you, when it sounds as U, Y-O-U, यो। कॉन्सोनेंट यो का हिंदी में यो का उकार लगाएंगे तो यू हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, यूरोपियन। सब में यूजफुल में यू, यूनिवर्सिटी में यू, यूनिवर्सल में यू, यूनिक में यू, यूरोपियन में ई। सब वॉवेल लेटर है, साउंड कंसोनेंट का है, इसीलिए ए लग रहा है। इसको हमें जानना चाहिए, वी शुड नो। ऐसे और सब्जेक्ट वर्ड्स कलेक्ट कीजिए अपने स्टॉक में टू मेक ए प्रैक्टिस। यूज ऑफ एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑल, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज। इन सबों में हम एन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। जब वॉवेल साउंड हो, इंक पॉट में ई, एलिफेंट में ई, ऑल में ओ, अम्ब्रेला में अ, एप्पल में अ यूज होता है, इसीलिए हम इनको कहेंगे वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। वॉवेल पहले भी मैंने बताया कि 20 होते हैं, 12 मोनोफ्थोंग हैं, एक बार में बोला जाता है। अ आ ई उ ऊ ए ऐ हिंदी के। ऐसे इसका सिंबल है, डिक्शनरी में मिलेगा। या फिर हमारा आप देखिए अल्फ़ाबेट्स, फोनेटिक्स एंड वर्ड का एक वीडियो है, इस पर दिया होगा यूट्यूब पे, उसको आप देखिए। An honest man, an hour, an honor, an honorable man. यहाँ सब जगह पे an यूज हो रहा है because here h is silent. In honest, H-O-N-E-S-T, h is silent and it is pronounced as honest. ऐसे ही honor, H-O-N-O-U-R, honor, इज्जत, an hour, यहाँ भी h silent है, इसलिए n लेगा। वॉवेल का साउंड आ रहा है, h से स्टार्ट होते हुए भी वो साइलेंट है और साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल, वॉवेल साउंड, सो इट टेक्स एन। एन एम एल एन एम एन एल एल वी, एन एस डी ओ, एन एम पी, इन सब में भी ये एब्रीविएटेड वर्ड हैं। इसमें भी हम एम तो मो होता है, कंसोनेंट दिख रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे बोलते समय तो एम एल ए बोलते हैं, ई एम एम। ऐसे ही एस डी ओ में, एस डी ओ में एस ई एस एस बोलते हैं। उसके बाद एम में ई एम, एल में ई एल। तो ऐसे कॉन्सोनेंट वर्ड या लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होता है वहाँ पे एन लगता है। नाउ यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। I am going to the school. The man standing on the station is my brother. That is the place where I lost my pen. He is the teacher who won the award. Before a particular person, place or thing. Station place है और टीचर पर्सन है, अवार्ड भी एब्स्ट्रैक्ट ये है, वहाँ भी दौर लगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इन सब के पर्टिकुलर के आगे हम दौर लगाते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल फिक्स है, पर्टिकुलर है। द अर्थ, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द सन, ये अपने टाइप का एक है, यूनिक है। पूरे यूनिवर्स में जो अकेला हो उनके लिए हम द का यूज करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में द ओल्ड, द न्यू, द फ्रेश, द क्लीन, ऐसे में ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है द। द यंग, द ब्राइट। The dog is faithful animal. The horse runs fast. The rose is a beautiful flower. The cow. जब हम सिंगुलर नाउन को पूरे क्लास के लिए यूज करते हैं, यहाँ हम सभी डॉग के लिए कर रहे हैं कि फेथफुल होता है। हॉर्स, सभी हॉर्स तेज दौड़ते हैं। रोज, सभी रोज अच्छा सुगंध देता है, सुंदर है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास।
Mango is one of the sweetest. The best friend should be trusted. Kolkata is the biggest. Superlative degree, एडजेक्टिव के superlative degree में अब good, better, best, strong, stronger, strongest, light, lighter, lightest, heavy, heavier, heaviest. तो जो superlative degree है सब में द लगेगा. The sweetest, the best, the biggest, the largest, the strongest. The first, the third in the line, the last in the rank, the final, the penultimate. Penultimate मतलब final ही होता है last वाला. With ordinal. एडजेक्टिव दो तरह का होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल. काउंटिंग नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 वगैरह ये कार्डिनल है, काउंटिंग नंबर है एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव का. और दूसरा फॉर्म होता है ऑर्डिनल नंबर, जिसमें ऑर्डर बताते हैं. तो द फर्स्ट बॉय, द थर्ड गर्ल, द सेवेंथ बेंच, द सिक्स्थ रूम, द लास्ट इन रैंक, सबके आगे द लगेगा. द रिच शुड हेल्प द पुअर. The needy were given money. Before adjective used as noun. Adjective जब use के noun की तरह use करते हैं तो उनके आगे हम द लगाएंगे. जब rich person कहेंगे तो वहाँ rich adjective है, इसलिए adjective के आगे द लग गया. यहाँ पर adjective जो है noun बन करके काम कर रहा है. rich adjective भी होता है, rich noun भी होता है. needy adjective भी होता है, needy noun. needy person बोलेंगे तो यहाँ adjective होगा. और द नीडी जब कहते हैं तो जरूरतमंद, यहाँ पर नाउन बन रहा है, इसलिए द लग गया. वी शुड नो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियरली, देन विल अंडरस्टैंड. द गैंजेस, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द गोदावरी, बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स ये लग जाता है द. द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द इंग्लिश चैनल, ये द लगता है बिफोर द नेम ऑफ ओशन, चैनल, कैनाल्स एक्सेट्रा. The Mount Everest, the Taj Mahal, the United Kingdom, the Republic of Ireland, the USA, किसी कंट्री के नाम क्या कि जो प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है. अब यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूएसए, ये प्लूरल है, ग्रुप है, कंट्रीज के ग्रुप हैं. कई कंट्री मिल करके ये ग्रुप बनाए हैं, इसीलिए इनमें द लग रहा है. ताजमहल मॉन्यूमेंट है, इसलिए माउंटेन एवरेस्ट है. द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इस तरह से हम बोलेंगे. द माउंट एवरेस्ट, द नंदा देवी, द हिमालय, द लगेगा वहाँ. द फिलीपाइंस, द नीदरलैंड्स, यहाँ पर एम गलत लग गया, नीदरलैंड है, एन होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास. यह प्लूरल कंट्री एक है, लेकिन इनके नाम प्लूरल से फिलीपाइंस कहते हैं. अगर फिलीपाइन कहेंगे तो द नहीं लगेगा, अगर नीदरलैंड कहेंगे तो नहीं लगेगा. द नीदरलैंड्स हैं इसलिए द लगा, फिलीपाइंस है इसलिए द लगा. यानी जब कंट्रीज विथ प्लूरल नेम, किसी कंट्री का प्लूरल नेम होगा तभी. आगे हम पढ़ेंगे डोंट यूज में कि जो सिंगुलर रूप में एक कंट्री का होगा वहाँ द नहीं लगेगा. अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स के आगे द इंडियन एक्सप्रेस, द ओलिवर ट्विस्ट, द आउटलुक, द नेशनल हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द इंडिया टुडे मैगजीन है, द ओलिवर ट्विस्ट बुक है, इन सब के आगे द लगा. द मुस्लिम, द इंडियन, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द यूरोपियन, द अरब्स, बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज या नेशनल्स, उनके आगे भी लगता है किसी, जब देश की बात में किसी कम्युनिटी की बात हम करते हैं, द हिंदूज, इस तरह से. उसके बाद महाकाव्य, एपिक, बिफोर द नेम ऑफ द एपिक, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द उपनिषद, द कुरान. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द म्यूटिनी, द मैसेकर ऑफ पेरिस, द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1985. इस तरह से हम जब किसी घटना के बारे में, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बोलते हैं तो द लगता है. द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जहाज ऑफ मिथिला, द बिरलाज, बिफोर द नेम ऑफ फेमस फैमिलीज, फेमस फैमिली के आगे द लगता है. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द टाटाज ऑफ इंडिया आर द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. यहाँ पर जब
शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है और टाटा जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम कॉमन नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तब जाके ये द लेगा। ही इज द ओनली सन of that family. धोनी is the only batsman who can win. Only के आगे भी यूज होता है जब उसका मतलब एक से है, मतलब अपने तरह का एक ही है, only the type, single, ऐसे सेंस में आएगा। ये भी एक अलग यूनिक यूज है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, आपको सीखना चाहिए। India became independent on the 15th of August 1947. The 26th of January is the red letter day in Indian history. Before the date important होता है। I have planned to travel the whole world. All the countries of the world is suffering due to coronavirus. Before the whole के आगे भी और all के आगे भी the का उपयोग होता है, ये भी सीखना चाहिए। Don't use the before the following. अब ये 8 केसेस हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है, इनमें द का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। डोंट यूज, इफ यू विल यूज इट विल, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी डिजीज के आगे नहीं। डोंट यूज द नेम बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, द इंग्लिश, द हिंदी, द मैथिली नहीं बोलना है, द नहीं लगाना है। डोंट यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के आगे नहीं लगाना है the building, the land, ऐसे नहीं करना है। Don't use the before the name of country, किसी कंट्री के आगे नहीं लगाना है। The India नहीं कहेंगे, the बांग्लादेश नहीं कहेंगे, the पाकिस्तान नहीं कहेंगे, the चाइना नहीं कहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन के आगे हम लोग पढ़े थे पहले, द ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, द यूके कहेंगे, द यूएसएसआर कहेंगे, द यूएसए, क्योंकि ये समूह है, कंट्री के ग्रुप हैं, इनमें लगेगा, सिंगल कंट्री में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। डोंट यूज द बिफोर द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं लगाना है। डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ हॉस्पिटल, द मैक्स हॉस्पिटल, द एम्स कहना गलत है। द सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, किसी हॉस्पिटल का आगे द नहीं लगाएंगे। डोंट यूज द बिफोर द गॉड, द रामा, द कृष्णा, द लक्ष्मी, द दुर्गा नहीं बोलना है। Don't use the before the name of school, the DAV school नहीं बोलेंगे, the केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलेंगे। Don't use the before any school. Now if you want complete content, then I have a website www.englishontips.com. वहाँ पर ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी, इंग्लिश कोर क्लास 1, 11, 12 का सब कुछ है। You can have from there. And like, subscribe and share this YouTube channel where you are attending this lesson now. And there is another URL www.tiny.cc sanskar, sahitya or sanskar. There you will get very good poem, lessons, story, elocutions, declamation, many things that will be interesting to hear, and you can have your connection, आपका संबंध बनेगा सोसाइटी से, साहित्य से।